मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भाई हेमांग जोशी जी, हमारी माननीय मंत्री मनीषा बहन, उपस्थित यहाँ पर जनिक भाई वकील मयूर भाई सूथर, डॉक्टर अनिल भाई पटेल, डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, हमारी मेयर मिसेस पिंकी बहन, हमारे माननीय विधायक योगेश भाई, केयूर भाई रोकाड़िया, रमेश भाई पटेल, चिराग भाई बरोट डिप्टी मेयर, मनोज भाई पटेल, ध्रुविक पारिक जी जो हमारे चेयरमैन आईसीआई और सभी आईसीएसआई, आईसीएमए और अन्य औद्योगिक संस्थाओं के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदर के योग्य देवी और सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, लेट मी फर्स्ट थैंक द डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ भारतीय जनता पार्टी and also various industry bodies as well as the professional bodies who have invited me here to speak on the budget 26-27. The union budget is a continuation of a 12-year reform. I'll say it's a reform express that has moved India from a stage where we were stuck. One point which Hemang ji has said here, that one gentleman said that India is a dead economy. I don't want to comment on that. I just want you to have a look at the picture, then decide on your own whether India is a dead economy today or India is the world's fastest growing economy. If you look at the statement of that gentleman, during their government from 2004 to 14, India was among the fragile 5 economies of the world. But today, India is the 4th largest economy of the world. And let me say this, that day is not far when India will be the 3rd largest economy of the world. And the credit goes to you. I am standing in the state of Gujarat, which has given India a leader who is not only leading India from the front, but the world is looking at Narendra Modi to give the leadership. And if my memory is right, Narendra Bhai filed his nomination from here only in 2014. So my friends, this 12-year reform express actually started way back in 2001 when Narendra Bhai became the Chief Minister of Gujarat. He took Gujarat to the next level and showcased the country what should be the governance model of a state and what governance model India deserved in 2014. So it was the Gujarat success story which showed the way for India, that how India should move ahead. And I'm glad after a long time since 1984, it was in 2014 when a full-fledged government with the full majority came under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi. Since then, this reform express is going on, from policy paralysis to policy performance, from leakage to delivery, from corruption to confidence, from megawatts to gigawatts, and from megabytes to gigabytes, and from cut money towards kartavya. Earlier government ran schemes. This government, the Modi government,
run systems. Earlier government distributed doles. This government builds capacity. Earlier there was a file movement. Today there is a fund movement. And when I say fund movement, in this year budget, the public capital expenditure will be 12,20,000 crore rupees, highest ever. तो साथियों, ग्रेन से गीगाबाइट की बात हो या जन विश्वास से जन कल्याण के बजट की बात हो, इसमें हर वर्ग का बहुत ध्यान रखा गया है. और जन विश्वास 2.0 की जब मैं बात करूंगा बाद में, तो उसमें विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग से कहना चाहता हूं, इस देश में अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल लॉस, एक तरह से अगर देखा जाए, आपकी छोटी छोटी भूल के लिए आपको जेल में डालने के प्रावधान थे. और फैक्ट्री एक्ट हो, लेबर कोड हो, बाकी सब में तो इस तरह की हालत है कि फैक्ट्री का पेंट अगर एक ठीक नहीं हुआ या आपके टॉयलेट्स उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए, फलानी सुविधा नहीं हुई, तब भी आपको जेल के जाने की थी. हमने लगातार कंप्लायंस बर्डन को, यू रिमेंबर इन 2014 द ओवरऑल कंप्लायंस इन दिस कंट्री वाज 63,000 फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट टू द कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट, टू द कॉर्पोरेशन लेवल, दैट इज ऑल्सो पैरेलल गवर्नमेंट. It has been cut down from 63,000 to 22,000 compliances only, and we are bringing it further down so that there are less compliances and there is more of ease of doing business. हमारा लगातार प्रयास उसी दिशा में है. And we have also decriminalized a lot of laws where you have to pay only penalty, you won't be put behind the bars. ये बड़ा बदलाव जो सरकार ने किया है, वो भय कम करने का भी और साथ में भ्रष्टाचार तो कम किया, लेकिन अपने व्यापारी वर्ग को यह भी बताया है कि अगर आपसे गलती हो भी गई तो अब आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, पेनल्टी देकर ही आपको छूट मिल सकती है. और आगे भी हम वो करने वाले हैं. ऑन द अदर हैंड, वी हैव यूज्ड द टेक्नोलॉजी टू द कोर, फ्रॉम द डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर से लेके जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी की बात करें तो आज से 7-8 साल पहले तक दुनिया भर में 2 क्षेत्र अगर आप देखेंगे, एक स्टार्टअप और डिजिटल ट्रांसफर्स, डिजिटल बैंक ट्रांसफर आप या डिजिटल ट्रांसफर्स आप बोल लीजिए, डिजिटल पेमेंट बोल लीजिए, इसमें भारत कहीं नहीं खड़ा था. प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमें डिजिटल पेमेंट्स करनी चाहिए, तो एक पूर्व वित्त मंत्री ने कहा इस देश में इंटरनेट नहीं है, लोगों के बैंक खाते नहीं हैं, गांव में स्मार्टफोन नहीं है, तो डिजिटल पेमेंट कैसे होगी. लेकिन देखिए, आपके यहां से एक चाय वाला आया था, गरीब से लेके व्यापारी के दर्द को समझता था, टेक्नोलॉजी को समझता था, सदा नई चीज सीखने की सोच रखता था. उन्होंने गांव गांव में आज 5G कनेक्शन भी मिलते हैं, ब्रॉडबैंड भी मिलता है, स्मार्टफोन भी सस्ते हो गए, डेटा भी सस्ता हो गया, और दुनिया की जितनी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं उसकी 50% डिजिटल पेमेंट्स आज भारत करता है. दूसरा, स्टार्टअप्स की मैं बात करूं, 2014 में सिर्फ 354 स्टार्टअप्स थी, आज 2,04,000 स्टार्टअप्स इस देश में हैं. 120 यूनिकॉर्न हैं. लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार हमारी स्टार्टअप्स के माध्यम से मिला है. मुझे आज भी याद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फंक्शन में प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो सीए की कलम और सिग्नेचर की बात कही थी. मुझे याद है, शायद आपको याद हो ना हो, और आपकी उस ताकत को. और आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि अगर बिग 4 दुनिया भर की आके भारत में इतना व्यापार कर सकती हैं, तो भारत की कंपनीज को अपना इतनी ताकत बढ़ानी है कि हम भी दुनिया भर में जाकर अपना धंधा खड़ा कर सकें, दुनिया भर की मार्केट को प्राप्त कर सकें. सो उस दिशा में कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम लोगों ने काम किया है. सो लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन द बजट. पिछले साल कितना बजट था देश का? कितना था? कितने लाख करोड़ का बजट था भाई? 50.65 लाख करोड़ का.
इस बार 5.6% वृद्धि होके 53.47 लाख करोड़ रुपीस का बजट हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे 2 साल पहले 10 लाख करोड़ रुपया पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, पिछले साल लगभग 11 साढ़े 11 लाख करोड़ हुआ, इस साल उसको कम नहीं किया, बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपया पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। यानी कि देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 12,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ये केवल सरकार तो पैसा खर्च करेगी, प्राइवेट सेक्टर से भी लगभग 4 साढ़े 4 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। तो 17 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जब आएगा तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी इससे उत्पन्न होंगे। दूसरा आता है फिजिकल प्रूडेंस की। जब हम बात करते हैं कि आपके देश का फिजिकल डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। कोविड के टाइम एक समय था जब हम देश को मुफ्त में अनाज भी देना पड़ा, बैंकों में मॉरेटोरियम पीरियड भी देना पड़ा, फिर आपको हमने भारत सरकार की गारंटी पर 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमने व्यापारियों को कोविड के समय दिया। हमने बैंकों को भी नहीं डूबने दिया और आपके व्यापार को भी खत्म नहीं होने दिया। आप याद करिए 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तब उस समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। कांग्रेस के जमाने में भारत के जो सरकार के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से, लेकिन हम 5R रिफॉर्म्स लेकर आए। उससे क्या फर्क पड़ा? आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में है। केवल एसबीआई बैंक का सालाना मुनाफा 72,000 करोड़ रुपया है और सारे बैंकों को मिला लो तो 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है। यह फर्क है मोदी सरकार का। कांग्रेस के समय उन बैंकों को लूटने की खुली छूट थी, आज हमने अपने बैंकों की ताकत बढ़ाई है। उस समय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो थे, जो हमारे पीएसयूज हैं, उनका मुनाफा उतना नहीं था, आज वो रिकॉर्ड मुनाफे पर हैं। टॉप 500 कंपनियों में अधिकतर अगर आप पहले 10-12 में देखोगे तो पीएसयूज हमारे आते हैं। हमने डिफेंस के क्षेत्र में, हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कहीं नहीं खड़े थे, बहुत कम हमारा मैन्युफैक्चरिंग था। आज 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा सालाना मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमारी हो गई। हमारा एक्सपोर्ट 830 करोड़ रुपए का था जो बढ़कर 26,000 करोड़ रुपया साल का हो गया। अगले 2 साल में 40,000 करोड़ हो जाएगा। साथियों, बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैसे फर्क पड़ा है। आईटीआर की जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न है उनको और सरल करने के लिए हम नया इनकम टैक्स एक्ट लाए। इस अप्रैल से वो लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न कोई भरना भूल गया, कोई विलंब हो गया तो उसको हमने 31 मार्च तक की छूट दे दी है। अलग अलग समय सीमा अलग अलग वर्गों के लिए तय की ताकि प्रेशर सीएस के ऊपर भी ना आए और बाकी सब हो जाए। यही नहीं, जो हमारा टीडीएस कटता था सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज पे, वो अब 2% की बजाय 1% ही कटेगा। ये भी बदलाव हमने इसमें कर दिया है। सिंगल एंड इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो कार्गो क्लियरेंस के लिए हमने किया ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ पाए और इंपोर्ट में भी आसानी हो जाए। अब नॉन प्रोडक्शन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट बुक्स नहीं दे पाते तो पहले उसमें क्रिमिनल एक्शन था, यानी कि जेल जा सकते थे। अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, आपको इसका लाभ मिल जाएगा। यही नहीं, महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला बड़ी ध्यान से सुन रही है, गुजरात की महिलाओं को तो पता बाजार के भाव भी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना कहाँ नहीं करना। तो मैं पिंकी जी और मनीषा जी से रात में पूछता रहता, भाई आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही हो, बताओ थोड़ा, मुझे पता चल जाए क्या कुछ करते हो नहीं करते हो तो। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए जो लक्ष्य रखा, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना था, लगभग 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। और अब उनको और पंख और ऊंचाइयां देने के लिए शी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज, यानी कि उसको केवल एक सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, अब उसको उद्योग का दर्जा देने के लिए भी आगे बढ़ाने के लिए, जहां बैंक से उसको स्टैंड अप इंडिया में मदद मिलेगी, वहीं पे मुद्रा योजना में मदद मिलेगी, वहीं शी मार्ट के माध्यम से उसको अपना सामान बेचने के लिए मार्ट की सुविधा भी मिल जाएगी। ये मोदी सरकार ने इसमें प्रावधान किया है।
अब गुजरात तो फार्मा का हब है भाई, गुजरात हिमाचल हम दोनों फार्मा का हब है। पिछली बार 3 बल्क ड्रग पार्क दिए गए ताकि एपीआई पार्क्स जो हैं, जो इंग्रेडिएंट्स जो हमारा रॉ मटेरियल है वो चाइना की बजाय हिंदुस्तान में बने। उसके लिए लगभग 2000 करोड़ रुपया था, तो गुजरात को पिछली बार मोदी सरकार ने दिया। मेडिकल डिवाइस पार्क बने तो बनाने की सुविधा दी। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी WHO के सेक्रेटरी जनरल को लेके आए, तो दुनिया भर में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का हब कहीं पर बनना है वो कहीं और नहीं, हमारे गांधीनगर में उसका हेडक्वार्टर बना कर दिया। अब उसके और बढ़ावे के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर किया ताकि उसकी क्षमता को बढ़ाए। लेकिन साथ ही साथ बायोफार्मा का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बने, तो बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ साथ इसमें हजारों लोगों के रोजगार की सुविधा भी मिलेगी और 10,000 करोड़ रुपया अगले 5 साल में बायोफार्मा शक्ति के लिए मिलेगा, जिसमें गुजरात को भी एक बड़ा लाभ मिल सकता है। यही नहीं, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स की कमी देखी गई। आपने देखा चिप की कमी कोविड के टाइम पे आई, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, तो क्या हुआ, गाड़ियों से लेके पंखों से लेके सब कुछ में दिक्कत आनी शुरू हो गई। छोटी छोटी चीज में भी स्विच ऑन बल्ब करेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ सेमीकंडक्टर का एक पार्ट लगता है जिसका आपको उपयोग करना है, गाड़ी से लेके बाकी जगह पे भी। लेकिन भारत में उस तरह से क्षमता नहीं थी फैब यूनिट की हो, बाकी सब। अब देश में वो भी क्षमता शुरू किसने करवाई? किसने करवाई? मोदी जी ने करवाई। और पहला प्लांट कहां पे लगा? गुजरात में। एक ही आया? 2 आए, धुलेरा भी आया। और साथियों, अब तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इसको भी मंजूरी दे गई है, जिसके कारण और यूनिट्स आएंगे। आपने देखा होगा आज से 7 साल पहले प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हम लेकर आए। पहला सेक्टर कौन सा था जिसमें लेकर आए? कौन सा? मोबाइल, ऑटोमोबाइल नहीं, मोबाइल। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारे 99% से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट ही होते थे। और आज कितने % इंपोर्ट होते हैं? बिल्कुल ठीक कहा, इंपोर्ट नहीं होता, अब एक्सपोर्ट होता है। केवल एप्पल, जो आप आईफोन यूज़ करते, अगर उनकी ही मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो 1 लाख करोड़ पार कर गई और एक्सपोर्ट भी हजारों करोड़ में होना शुरू हो गया। ये विजनरी नेता का फर्क है, ये रिफॉर्म्स का फर्क है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के कारण आज 99.5% से ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग भारत में और हो, उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया ताकि हमारे यहां पे उसको लाभ मिल सके और मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा। ऑटोमोबाइल की आपने बात की, तो ऑटोमोबाइल में भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, 2nd लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है, जेनरिक फार्मा में लार्जेस्ट हम हैं। यही नहीं, दूध में नंबर 1 पे हम है, और उसमें भी गुजरात का अमूल बहुत बड़ा रोल एक अदा करता है, क्योंकि पूरी कोऑपरेटिव सेक्टर में इतने बड़ा कोऑपरेटिव दुनिया में कहीं नहीं होगा। साथियों, यही नहीं, ऐसे बहुत सारे और बदलाव। गुजरात में केमिकल इंडस्ट्री भी बड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, अब उसके लिए भी मोदी सरकार हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसके लिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब डिडक्शन, जो मैंने कोऑपरेटिव की बात की, अब डिडक्शन अलाउ कर दी है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जो कैटल फीड और कॉटन सीड प्रोडक्शन में है। तो उसमें भी डेयरी हो या कोऑपरेटिव सेक्टर हो, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये 4 राज्यों का बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है। इसी तरह से 500 रिजर्वायर और सरोवर बनाने हैं, उसके लिए हमने काम किया है। फिश कैचिंग के लिए, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में हमारे मछुआरे जाके मछली पकड़ते थे,
तो उसको बेचे कहाँ, वापस लाना है, तो उसके बजाय अगर बाहर किसी देश में जाके बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट गिना जाएगा। ये भी एक बड़ा बदलाव उसमें किया गया है। विदेश में माल किस चीज में भर के जाता है? शिप तो लेके जाता है, भरते किस में है? कंटेनर्स में। क्या कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है? जितने लाखों कंटेनर इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, उतने हैं नहीं। और आपको याद होगा कोविड के बाद हमें बहुत बड़ी कमी एक ये आई थी। एक हमारी शिप इंडस्ट्री अपनी बहुत छोटी है, दूसरा कंटेनर की फैसिलिटी हमारी नहीं है। तो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी मोदी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया ताकि हम लोग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बल दे सकें। यही नहीं, हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, जो पुराने ऐसे 200 क्लस्टर्स हमारे इंडस्ट्री के हैं, उनको वापस रिवाइव किया जाएगा और 10,000 करोड़ रुपया एमएसएमई ग्रोथ फंड, इसका भी प्रावधान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सूरत मैन्युफैक्चरिंग हब है कि नहीं है? अब नया फ्रेट कॉरिडोर कहां के साथ जोड़ा गया? ईस्ट और वेस्ट को जोड़ा गया। पश्चिम बंगाल के दनकुनी से सूरत के लिए नया फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा हुई। उसके लिए गुजरात वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई सब जगह आप ही नंबर 1 है। पहली बुलेट ट्रेन तब आपके यहां से, पहला एक्सप्रेसवे तब यहां से, तो सब कुछ गुजरात को ही पहले है। गुजरात नंबर 1 है। और जब चुनाव भी आता है कि गुजरात में किसको जिताना है, तो सारी की सारी सीटें जिताकर मोदी जी को नंबर 1 पे आप ही बनाते हैं। साथियों, यही नहीं, एआई मिशन के माध्यम से, देखिए एआई के आने के बाद जब हम कहते हैं ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे हर व्यापार में बहुत तेजी के साथ बदलाव आएगा। आम जनमानस के जीवन में बदलाव आएगा। आज से 5-7 साल पहले आप नहीं सोचते थे मोबाइल फोन पे सब कुछ कर लोगे, आज सब कुछ इसी पे कर रहे हो। इसी तरह से एआई के टूल्स का भी बहुत बड़ा फर्क आपके जीवन में पड़ेगा। लेकिन क्या हम अपनी जनता को एआई मॉड्यूल्स के प्रति जागरूक कर रहे हैं? जैसे डिजिटल लर्निंग हो, फाइनेंस के बारे में हम लोग सिखाने का काम करते हैं ताकि कोई आपका पिन का गलत इस्तेमाल ना कर ले, आपके मोबाइल फ़ोन से आपको गलत दुरुपयोग ना करे। वो सारी लर्निंग साथ साथ में डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी के बाद अब एआई मॉड्यूल्स को 25 करोड़ लोगों को सिखाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। उसके लिए भी प्रावधान कर दिया गया है। 10,000 गाइड्स, गुजरात में बहुत सारी ऐतिहासिक साइट्स हैं, तो 10,000 गाइड्स को स्किलिंग और अपस्किलिंग करने का काम भी किया जाएगा 20 आइकॉनिक साइट्स पे। नया इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन वो भी खोला जाएगा। और हमने जो एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात कही, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्राइज, इसमें भी बताया कि कैसे हमने आगे एंटरप्राइज के प्रति लोगों को और जागरूक करना है, तैयार करना है। जहाँ तक बेटियों की बात आती है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टेम की स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए देश के 800 के 800 जिलों में अब गर्ल हॉस्टल बनाकर दिया जाएगा। अगर बच्चियों ने काम भी करना है, पढ़ना है, तो भी उनको वहाँ पे प्रावधान होगा। देखिए, इससे पहले भी 800 के 800 जिलों के लिए मोदी सरकार ने कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना के देंगे। ये जो विदेशों में हमारे बच्चे मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, इसकी बजाय हिंदुस्तान में पढ़ें। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे यहाँ पे केवल 350 मेडिकल कॉलेज थे। पिछले 7-8 सालों में हमने उसको बढ़ाकर आज 760 मेडिकल कॉलेज पे पहुँचा दिया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज हमने 3 साल पहले मंजूर किए। और यही नहीं,
हमारे यहाँ पे 13 आईआईटी थे, आज 21 हो गए। 12 आईआईएम थे, आज 20 हो गए। 9 ट्रिपल आईटी थे, आज 25 हो गए। 7 एम्स थे, आज 23 हो गए। 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 21 शहरों में मेट्रो है। और 74 एयरपोर्ट थे, आज 165 एयरपोर्ट हो गए। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1,60,000 किलोमीटर हो गए। 3,23,000 किलोमीटर ग्रामीण रूरल रोड थी, आज 7,40,000 किलोमीटर हो गई। और यही नहीं, एक वाटरवे था, आज 100 वाटरवेज पे हम काम कर रहे हैं और 20 नए हम उस सेंटर में काम कर रहे हैं। ये बदलाव है। हम लोग पहले गुजरात आते थे कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते गुजरात के एक कोने से दूसरे कोने पे एक्सप्रेस वे फलाना कर दिया। मैं तो गुजरात आज से 3 दशक पहले से आता हूं, लेकिन 2002-03 के बाद मैंने जो बदलाव देखा, ये वडोदरा से मैं जाता था जी अहमदाबाद के लिए, मुझे पता है कितना टाइम लगता था। अमरेली से मैं जाता था अहमदाबाद के लिए, पता लगता कितना टाइम लग गया। आज जमीन आसमान का बदलाव है। देखिए जी, आपकी आज की पीढ़ी जो 12 साल से 25 साल वाले होंगे ना, उनको कुछ पता नहीं होगा क्या था पहले। उनको लगता हो दुनिया सदा ऐसी ही थी, ऐसी नहीं थी साहब। ये आज की पीढ़ी को बताने की जरूरत है और ये बड़े बुजुर्गों का काम है समझाना। इस देश में केवल 3 करोड़ घरों को नल से जल आता था। मोदी जी ने पिछले 6 साल में 13 करोड़ नए घरों को नल से जल दे दिया। आप कल्पना कीजिए, इस देश में हजारों गांव ऐसे थे जो सड़क से नहीं जुड़े थे, जो बिजली भी नहीं आती थी। आज हर गांव में लगभग बिजली पहुंच गई है। हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम हो गया। जो अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने उसका PMGSY 4 लॉन्च करके उसको भी, अब जो पुरानी सड़कें उनको भी रेनोवेशन करने पे आगे, उसको दोबारा ले करने पे आगे, बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आगे, अस्पताल, स्कूल, पंचायत घर तक सुनिश्चित करना है कि जोड़ना। आज उस स्थिति में लाके नरेंद्र मोदी ने देश को खड़ा कर दिया। ये है आज का भारत। और यही नहीं, जो कल पार्लियामेंट में कह रहे थे, बिना बात से कोई चर्चा करने की बात कर रहे थे, मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, जब डोकलाम की घटना हुई, जब चीन अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, तब राहुल गांधी जी कहां छिपे हुए थे? कहां थे बताओ? चाइनीज एम्बेसडर के साथ दिल्ली में एक बंद कमरे में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? उस समय भारत के सेना के जवान चीन के सैनिकों को वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे कि उसके बाद चीन वापस भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाया। हमारी सेना ने खुली छूट दी गई और हमारे रक्षा मंत्री भी बॉर्डर पर गए और हमारे प्रधानमंत्री भी बॉर्डर पर जाके सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। हमें राहुल गांधी जी से ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हर दिवाली अपने मां के पास नहीं आते थे। देश की सीमा पर जो जवान अपनी मां से दूर थे, उनके बीच में जाकर दिवाली मनाते थे। अरे ये कांग्रेस ज्ञान देगी हमें बॉर्डर सिक्योरिटी पे? मैं 5वीं बार का लोकसभा का सांसद हूं साहब। मैंने 2 टर्म तो कांग्रेस की देखी है। जब हम लोग चीन पे प्रश्न पूछने लगते तो कांग्रेस के लोग चीख पुकार के कहते थे, मत पूछो, चीन नाराज हो जाएगा। ये कहते थे हम बॉर्डर पे सड़क इसलिए नहीं बनाएंगे कि चीन नाराज हो जाएगा। आज हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, जिसको लास्ट विलेज कहते थे, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उसको फर्स्ट विलेज और वाइब्रेंट विलेज बनाने का काम किया है। हमने देश की सीमा पे वहां पे सड़कें बना दी, एयरपोर्ट बना दिए, रेलवे लाइन पहुंचा दी। जिस नॉर्थ ईस्ट को एक शरीर के अंग से जैसा कटा हुआ छोड़ के रखा था, आज उनकी राजधानियों में, हर राज्य की राजधानी में आज मुख्यालय को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम भी कर दिया, नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम कर दिया, एयरपोर्ट की सुविधा तक बना दी। अरे जो 60 साल में ये नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल में करके दिया है। जब विषय पे ये लोग चर्चा नहीं कर पाते, मैं साहब आप सबसे पूछता हूं, 2013-14 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था?
कितना था साहब बताइए? देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे कितना पैसा 2013-14 में बजट में प्रावधान था? 2 लाख करोड़ रुपया था। आज कितना है? 12,20,000 करोड़ रुपया, 6 गुना ज्यादा है। और मैं 1 साल का बता रहा हूं, कांग्रेस के 5 साल निकालोगे तब भी 12 लाख करोड़ नहीं होगा। पीड़ा इसलिए मन में होती है, जो हेमांग भाई अभी कह रहे थे कि साहब विपक्ष को इस बात के लिए तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए था कि जहां दुनिया भर में इतनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बीच में भी भारत का नेता, भारत का प्रधानमंत्री किसी के आगे झुका नहीं, आंख में आंख मिलाकर बात करता रहा और अपनी टर्म्स पे बात करता रहा। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है साहब कि हमने ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट ईयू के साथ भी किया, यूरोपियन यूनियन के साथ भी किया, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया और न्यूजीलैंड के साथ भी किया। और जिसके बारे में कांग्रेस कहती थी कि कहां होगा, रात को जब ये कांग्रेसी सो रहे थे ना, तब मोदी जी ने वो भी कर दिया। और जब तक ये सुबह उठे इनको लगा ये क्या हो गया, क्योंकि उनको तो विश्वास ही नहीं होता कि हो गया, क्योंकि इससे भारतीय इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। वो कहते हैं 18% टैरिफ पे कैसे कर लिया? दुनिया भर के देश जो हमारे कंपटीटर हैं, चाइना का 34% टैरिफ है, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड का कितना है? 18% से ज्यादा सबका है। सबसे कम उसमें किसी पे टैरिफ लगा है तो भारत पे लगा है साथियों। इसलिए इन विषयों को हमें अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी डालना चाहिए, जनता को जागरूक भी करना चाहिए और इससे हमें जो बल मिलेगा वो जरूर बताना चाहिए। हमें सस्ता क्या क्या होने वाला है? सोलर इक्विपमेंट, फुटवेयर, मोबाइल बैटरीज, ओवन्स, मेडिसिन, जो हमारी 17 ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर से जुड़ी हुई हैं, 7 ऐसी जो बहुत क्रिटिकल हमारी जो ऐसे रोग हैं उनके उपचार के लिए जो भारत में नहीं बनती, उनको भी 0 टैक्स कर दिया है, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया है जिसमें हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा और उसका सबसे बड़ा स्वरूप आपको आज से 4 साल बाद 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात में यहां पर होता दिखेगा। यही नहीं, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, जो मैंने बात कही कि मेगावाट्स में बात कांग्रेस के ज़माने में की जाती थी, हम गीगावाट्स की बात कर रहे हैं। उसमें भी सबसे बड़ा योगदान गुजरात का भी है। अगर आप देखिए आपके यहाँ पे कितने प्लांट्स लगे हैं उसकी ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। और अब जो नई टेक्नोलॉजी है पंप स्टोरेज की, पीएसपी हाइड्रो जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी हो, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हो। नई टेक्नोलॉजीज, नई क्षेत्र की और नई रिफॉर्म्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं इसमें क्या मिला, उनको जब तक समझ आएगा तब तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा, क्योंकि समझना ही नहीं चाहते वो। और मैं आपको बताना चाहता हूं गुजरात के लिए कुछ और भी। ये जो 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनेंगे, जहां पे आयुष सेंटर बनेगा, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर बनेंगे, डायग्नोस्टिक का वहाँ पे सुविधा मिलेगी, पोस्ट केयर एंड रिहैबिलिटेशन की जाएगी। ऐसे हमारे 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे तो उसमें कंपटीशन होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा गुजरात भी उसमें आगे आएगा और एक हब तो हमारे गुजरात में भी बनेगी। रेयर अर्थ कॉरिडोर, जो हम कह रहे थे कि हमें क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, रेयर अर्थ की ज़रूरत है, जहाँ दुनिया भर में आज लड़ाई है, उसके लिए भी हमने यहाँ पे प्रावधान किया है कॉरिडोर्स बनाने के लिए। केमिकल पार्क्स की बात मैंने पहले कर दी। मेगा टेक्सटाइल पार्क, और टेक्सटाइल गारमेंट्स तो गुजरात बहुत अच्छा करता है, उसका भी लाभ गुजरात को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन हम टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के माध्यम से करेंगे।
एक सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगले 5 साल में ये मिलेगा, इसका लाभ भी आप ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि हमारे यहाँ तो डिज़ाइनिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। 20 नए वाटरवेज जहाँ से हमें लाने ले जाने का फ़ायदा मिलेगा, वो भी शिप रिपेयर इको सिस्टम। उसके ऊपर हाईटेक टूल रूम्स की बात करूँ तो उसका लाभ भी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री इतनी है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स हमने 5 बनानी है। आज मैं देखूँ, मैं हिमांग भाई से और मनीषा जी से रास्ते में बात कर रहा था और मैंने अनिल भाई को कहा, अनिल भाई ये तो शहर एक ऐसा है कि लगता कि बुद्धिजीवियों के बीच में आ गए। यहाँ तो शिक्षा का पहले इतना अच्छा प्रावधान है। तो आपकी तो कई ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ 60-60 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। तो अपने आप में ही वो एक शहर है। तो ऐसा ही कहा गया कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स हमने नहीं बनानी है, उस दिशा में काम करना है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स की, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर हमारे बीच में बैठे ही हैं, जो सिंगल बॉन्ड 1,000 करोड़ रुपए का करेगा उसको 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मोदी सरकार देगी। और जो हमारी अमृत स्कीम चलती थी पहले, वो आगे चलती रहेगी मध्यम और छोटे शहरों के लिए। और जो हमारे इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI जिसको हम कहते हैं, उनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की अनुमति दे दी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वो करेंगे लिस्टेड कंपनीज में। और इसको जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है इंडिविजुअल PROIs को, वो 10% से बढ़ाकर अब 24% कर दी है, जिससे इन्वेस्टमेंट और आएगी। इसी तरह से MSME के लिए क्रेडिट गारंटी फंड वो दिया गया है, जिससे 20 लाख करोड़ रुपया अगले 5 सालों में हमारा जो लघु सूक्ष्म उद्योग है और मध्यम उद्योग है उसको इससे फ़ायदा मिलेगा। ट्रेड्स के माध्यम से आपको और MSMEs को, आपको सबको पता है, वो फ़ायदा मिलेगा। और जो हमारा जेम पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें भी MSME को लगभग पिछले 5 सालों में बढ़ते बढ़ते अब 1 साल की 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए तक की खरीद होती है उस पर। और अब तो कोऑपरेटिव्स को भी कहा गया कि उस पर खरीद करें। इसी तरह से SME ग्रोथ फंड 10,000 रुपये का दिया है। टॉप अप 2,000 करोड़ की इक्विटी हमारी सरकार उसमें करेगी। ऐसे अनेक और योजनाएं हैं जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख कर सकता हूँ, लेकिन 1-2 बातें कह के मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, ताकि आप अपने सवाल पूछ सकें। रीट्स के बारे में निर्मला जी ने बड़ा स्पष्ट वहाँ पे कहा था कि रियल एस्टेट के लिए जो हम लोग प्रावधान करने जा रहे हैं, अगर हम भारतमाला परियोजना की बात करें तो 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 1577 किलोमीटर 1577 किलोमीटर्स, ये टोटल लेंथ है इनकी प्रोजेक्ट्स की, 5 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की। 65,488 करोड़ रुपया गुजरात में खर्च होगा। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे है, अमृतसर बठिंडा जामनगर कॉरिडोर है, सूरत नासिक अहमदाबाद सोलापुर कॉरिडोर है, सांचौर दीसा महसाना अहमदाबाद कॉरिडोर है, ये सारे भी हैं। और इसके अलावा जो 2024 में मोदी जी ने 8 इम्पॉर्टेंट नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स दिए थे, जिनमें एक 6 लेन का थराड़ दीसा महसाना अहमदाबाद ये वाला भी है। और ऐसे अनेकों योजनाएं, जैसे प्रसाद की योजना हो जो हमारे टेम्पल्स को विकसित करने की है, या अहमदाबाद मेट्रो की 12,900 करोड़ का जो पहले दिया 2022 में, फेज़ 2 के लिए मोदी जी ने पहले पैसा वहाँ पे प्रावधान किया है। नए एयरपोर्ट्स आपके बन ही रहे हैं। अब कुल मिला के रेलवे कांग्रेस के टाइम पे 2004 से 14 तक, या मैं 9 से 14 लास्ट वाले 5 साल की बात करूं तो 13 किलोमीटर प्रतिदिन
या 13 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुई थी। आज वो 300 किलोमीटर हुई है, जो 23x है। नए ट्रैक हम उससे दुगने से ज़्यादा बनाते हैं, 132 किलोमीटर बने थे, अब 224 बनाए हैं। बजट आउटले कांग्रेस के 5 साल में 599 या 589 करोड़ थे, हमने दिए 8,743 करोड़ रुपये। और डबलिंग भी महसाना पालनपुर रेलवे लाइन को 530 करोड़ रुपये में करने की बात कही है। 87 अमृत स्टेशन यहाँ पे बन रहे हैं, 4 वंदे भारत आपके हमने चला दी है। जो टैक्स डेवल्यूशन की बात आती है कि 16वें वित्त आयोग में अब आपको कितना पैसा मिलेगा, तो टैक्स डेवल्यूशन जो भारत सरकार के ड्यूटीज और टैक्स इसको मिला के जो कुल आमदन है उसका आपको कितना हिस्सा मिलेगा, 57,310 करोड़ रुपया टैक्स डेवल्यूशन में गुजरात को मिलेगा 2026-27 में, और ग्रांट इन एड मिलेगी 20,011 करोड़ रुपया। इसके अलावा सेस्की फंड जो है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो उसमें 2020-21 में आपको 285 करोड़ रुपया मिला था। पिछले साल आपको 4,210 करोड़ रुपया मिला अब तक, यानी कि जो साल चल रहा है। अगले साल लगभग 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा आपको सेस्की फंड में भी अलग से मिलेगा, जो बगैर ब्याज के है, राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए है। ऐसे बहुत सारी बातें और भी हैं जिस पे मैं आज चर्चा इसके ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं तो समय, क्योंकि ज्ञान उतना ही देना चाहिए जितना लोग अडॉप्ट भी कर सकें। क्या फ़ोन की भी उतनी ही क्या होती है, मेमोरी। तो फ़ोन की कितनी गीगावाट्स पे है, कोई 256 है, कोई 512 है, किसी के कुछ है। अब तो टीबी पे भी आ गए हैं, टेराबाइट्स पे भी आ गए। तो हर किसी की अपनी अपनी क्षमता है, तो इसलिए ज़्यादा कहने की बजाय मैं इतना ही कहूँगा साथियों, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस जो मोदी सरकार लेकर आई है, इसके पीछे एक ही सोच है कि 2047 में जो विकसित भारत बनाना है उससे अलाइंड ये बजट है। और इस बजट में जो रिफॉर्म्स करके जो बजट में प्रावधान भी किया गया उसके 2 हिस्से हैं। एक फिजिकल प्रूडेंस, जो 4.3% हमारा फिजिकल डेफिसिट रहेगा, राजकोषीय घाटा हम लोग कम करके मात्र 4.3% पे ले आएंगे इस साल, यानी कि सरकार अच्छा काम कर रही है। बैंक सारे मुनाफे में हैं, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत 7% से ज़्यादा बढ़ रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने बढ़ाया है, 12.20 लाख करोड़ रुपया किया है, और हमारा कुल बजट का साइज भी 53.47 लाख करोड़ हो गया, और हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए हैं। तो 5-7 चीज़ें याद रखोगे तो सब काम चल जाएगा। बहनों के लिए इसमें बहुत कुछ है, युवाओं का सुझाव वाला ये बजट है, क्योंकि युवाओं के लिए इसमें बहुत कुछ है, खेलों से लेकर शिक्षा तक, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जॉब क्रिएशन तक, एंटरप्राइज खड़े करने से लेकर एंटरप्रेन्योर बनने तक। तो मुझे लगता है ऐसा अवसर है कि हम सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, निवेश करें, निवेश लाएं, और अपने कामकाज में और पारदर्शिता लाएं, ईमानदारी से व्यापार करें, सुख चैन की नींद सोएं। हमने डीक्रिमिनलाइज अपने लॉस को कर दिया है, जेल जाने का डर कम कर दिया, लेकिन कोई काम ऐसा ना करें जिसके कारण कोई आफत आए, क्योंकि आपका एक एक रुपया दिया टैक्स आज देश के गरीब के काम आया। कांग्रेस के समय गरीबी दर 25.9% थी, आज 11.3% है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर पिछले 11 साल में आए हैं। 4 करोड़ पक्के मकान आपके टैक्स के कारण बन गए, गरीब को मिल गए, 3 करोड़ और मिलने वाले हैं। 12 करोड़ बहनों को शौचालय मिल गया, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिल गया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता है। यही नहीं, आज गांव गांव सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच गई, लोगों को डिजिटल इंडिया का लाभ मिल गया।
ये टैक्स पेयर की ईमानदारी से दिए गए टैक्स के कारण है, और मोदी सरकार की 11 साल की ईमानदारी, जहां एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाया। ये ईमानदार सरकार ने ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार फिर इस गुजरात की धरती को मैं प्रणाम करता हूं, गुजरात वासियों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा नेता आज भारत को दिया है, जो भारत को दुनिया को शिखर की और भारत को दुनिया में शिखर की ओर लेके जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। आपने जो सरल और बहुत ही विस्तृत जानकारी बजट के बारे में दी है। अब यहाँ सामने बैठों में से महानुभावों में से अगर कोई इसके बारे में कुछ पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। कोई ने कोई प्रश्न हो तो। हेलो सर। कोई नहीं, आप बोलिए, आप वैसे बोल दीजिए। Are necessary for India to become a global economic thought leader? I think you raised a very important question. When I said the world is looking at India and India's leadership, there are two reasons for looking at India. One, look at the demographic dividend what we have. We have the world's largest youth power. We want to become the world's largest skilled manpower. We want to become the manufacturing hub of the world. If you look at the share of the manufacturing which is going up at the services sector also, what is leading towards that? It is a thought process of the leadership. When someone leading from the front have a very decisive role, not only at the central government level, but that goes down, percolate down to the lowest level also. Today you are also raising about the leadership role at the global level. Why so? Have you ever thought about it about 10 years back? Yes, for the Vision Vishwaguru, sir. For the next decade. What I am saying, क्या 10 साल पहले आपने कभी इसकी कल्पना की थी? नहीं No, की। no, no, sir. No. इसलिए कल्पना नहीं की थी कि तब तक हम अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रहे थे। हम अपनी समस्याओं से भी बाहर निकल कर आए हैं, समस्याओं का समाधान निकाला है, हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, तो आज एक नहीं अनेक सेक्टर्स में भारत लीडरशिप रोल में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आईटी कंपनीज में या मल्टीनेशनल्स में आज भारत के युवा लीड करें, दुनिया भर में सीईओज के रूप में काम करते हैं। आज भारत अपनी निर्णयों के कारण दुनिया भारत की ओर देखती कि वी स्टैंड अप टू आवर डिसीजंस, वी डोंट बो डाउन। हम झुकते नहीं, सम्मान की बात दूसरे के लिए भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं। ये सोच कैसे फर्क पड़ी? आज एक महिला पहली बार आईसीएमए की आपकी यहाँ की चेयरपर्सन बनी है। देश की राष्ट्रपति ट्राइबल क्षेत्र से बनी है, महिला है। देश के उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज से आते, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते, गरीब। कारण एक बड़ा सोच में बदलाव ओवरऑल थॉट प्रोसेस में ना केवल देश के अंदर आया बल्कि दुनिया भर के लिए हमारा है। आज हम दुनिया भर के लिए जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो हम भारत की बात क्या करते हैं? कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। तो क्यों बदलाव आया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्यों बदलाव आया? आपको क्यों लगता है बदलाव? पावर ऑफ लीडरशिप। तो जो देश के लिए भी चाहिए तो हर सेक्टर हर समाज में चाहिए।
आज प्रधानमंत्री जी अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी लीडरशिप की बात करते हैं, उनको पहले लखपति दीदी बनाने से एंटरप्राइज बनाने की बात करते हैं, तो उनको एक जगह रुकने नहीं दे रहे, नेक्स्ट लेडर पे जाना, ड्रोन दीदी से लेके अगले तक जाने की बात कर रहे हैं। आज स्टेम एजुकेशन में बेटियों के लिए हॉस्टल बनाने की बात करें तो इसके अंदर बेटियों को वहां रोक नहीं रहे, उनको और आगे लाने की बात कर रहे हैं। स्पेस सेक्टर, कोविड के टाइम पे हमने स्पेस, डिफेंस, माइनिंग, ये सारे सेक्टर्स खोले। हम कोल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे, हमारा बिल्कुल कम हुआ है पहले से काफ़ी ज़्यादा। हमने रिकॉर्ड 1 बिलियन टन की प्रोडक्शन कोल में पिछले साल की, आत्मनिर्भरता की ओर जाने के लिए। हो सकता है मैं उत्तर ज़्यादा लंबा आपका दे गया, जैसा आप सुनना चाहते थे वैसा ना हो। Thank you, sir. Good afternoon, Honorable Anurag ji and the stalwarts on the dais and off the dais. सर माइक थोड़ा नज़दीक रखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन में भी यही दिक्कत आई। Yeah, thank you. I have only one question. There is anything proposal in the budget about the merger of the nationalized bank and the nationalized insurance companies so that they can contribute and compete with the private sector bank to be globally competitive? You raised a very important question. We have 12 public sector banks. As I said, in 2014, out of 12, 11 were under PCA framework. उनके ऊपर संकट के बादल छाए थे सर 2014 में बैंकों के ऊपर। आज वही बैंक कुल मिला के 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाते हैं, जिसमें से केवल SBI 70,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाता है। लेकिन अगर आप HDFC, ICICI को देखेंगे तो वो उससे भी बड़े बैंक के रूप में नज़र आता है HDFC, ICICI। हमारे जो छोटे बैंक्स हैं, मान लीजिए IDBI है, यूनियन बैंक आ गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, क्या ये अलग अलग रह के इनका फ़ायदा है कि 2-3 को मर्ज करके एक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बराबर HDFC या बैंक ऑफ अमेरिका के बराबर बनाने का है? आज अगर हम दुनिया भर में हैं, आज जब मैं बिग 4 की बात अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर रहा था एडवोकेसी फर्म्स के साथ, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी? IDBI तो घाटे में ही था, अब तो अभी मुनाफे में आए, अकेले उस स्तर पे तो कम्पीट कर नहीं पाएगा। लेकिन 2-3 बैंक्स अगर इकट्ठे मर्ज होंगे तो उनकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, मुनाफा बढ़ जाएगा, कुल मिला के स्टेक होल्डर को फ़ायदा मिल जाएगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया हमारे साथ इंडिपेंडेंस साउथ कोरिया की भारत के साथ साथ हुई, सेम दिन हुई। आज साउथ कोरिया की आप कम से कम 4 ऐसे क्षेत्र गिना सकते हो जहां पे उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, LG, सैमसंग, हुंडई, इस तरह की कंपनीज के नाम आएंगे तो दुनिया भर में प्रोडक्ट्स बेचती हैं। भारत के ऐसे 4 नाम गिनाओ। तो जब हम इसको मर्ज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी क्षमता बढ़ेगी, मुनाफा भी बढ़ेगा, ओवरहेड्स कम होंगे, तो उसका लाभ ही है बैंकों का। इसी तरह से PFC और REC हमारी पावर सेक्टर में काम करती, एक तरह से उसी का ही सब्सिडियरी है। पर क्यों अलग अलग मैनेजमेंट हो? अगर एक मैनेजमेंट होगी तो बेहतर निर्णय होंगे, मुनाफा ज़्यादा होगा, ओवरहेड्स कम होंगे। तो अलग अलग सेक्टर के लिए वो निर्णय भारत सरकार ने किए हैं और ये भी कहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट को हम जारी रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी बैंक में हमारा 95% शेयर है, क्यों नहीं हम पब्लिक को शेयर दे देते हैं? भारत सरकार अगर 26% भी रखेगी, 50% भी रखेगी, तब भी जनता के पास 40% शेयर जाएगा। तो ड्राइवर सीट में तो सरकार फिर भी है, लेकिन जनता की भागीदारी बढ़ जाएगी, जनता की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? सरकार के पास पैसा भी जाएगा और इंस्टीट्यूशन में पारदर्शिता भी ज़्यादा आएगी। उस दिशा में कदम उठाए गए कि उनका साइज एंड स्केल भी बढ़ाया जाए, मार्केट शेयर भी बढ़ाया जाए, मार्केट में compete करने की क्षमता भी बढ़ाई जाए। उस दिशा में सर वो कदम। जी
इसके बिना ही पूछने तो भाई, उसके बिना ही पूछने दो। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। कॉर्पोरेट मित्र क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप, मैंने केवल स्टार्टअप की बात करूं तो स्टार्टअप की संख्या 350 से बढ़ के 2 लाख से ऊपर हो गई। तो हर स्टार्टअप को रिटर्न तो फाइल करनी है, तो कहीं ना कहीं उसकी हैंड होल्ड करने के लिए हर किसी को तो फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंट उस समय नहीं चाहिए होगा, लेकिन जो उसके छोटे मोटे दिनचर्या की बुक अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक काम है, तो अगर आप उतना भी किसी +2 पास को जिसका मैथमेटिक्स में बेहतर ज्ञान होगा, ग्रेजुएट होगा या कुछ और, उसको सिखाते उतना काम करना, तो आपके लिए भी फायदेमंद है और उनके लिए भी। इसी तरह से छोटे व्यापारी का भी जब आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है तो उनकी भी आमदन बढ़ रही है, उनका भी धंधा बढ़ रहा है, लेकिन बुक्स मेंटेन करने की दिक्कत है। वो भी साफ सुथरा काम करना चाहता है, लेकिन आपकी भी क्षमता उतनी नहीं कि आपको लगता अब तो लोड इतना आ गया। लेकिन आपके नीचे अगर 10 वॉलंटियर्स या मित्र ऐसे होंगे साथ में जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं वहां से आपके लिए भी व्यापार ड्राइव होगा, धंधा ड्राइव होगा, और व्यापारी के लिए भी एक आसानी होगी मित्र के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग मित्र, अब कई जगह बैंक की ब्रांच खोलना फिजिबल नहीं होती, खोलोगे तो किराया पड़ेगा, बंद हो जाएगी। एटीएम खोलते थे 100 ट्रांजैक्शन दिन की ना, तो बंद हो जाता है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंकिंग मित्र जब खुले तो उससे क्या लाभ मिला? वो गांव में जाके पैसा इकट्ठा भी करता है, जमा भी कराता है, पैसा लेन देन करता है, उससे उसको रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल गए, बैंक का खर्चा कम हो गया, लेकिन बैंकिंग सिस्टम के साथ ज़्यादा लोग जुड़ गए। उसी दिशा में जो व्यापार बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपके मित्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज क्या है, पार्टनरशिप कंपनीज पहले बहुत हो गया। आज लोगों को लगता होगा चलो यार मैं LLP बनाता हूँ, किसी को लगता हूँ प्राइवेट लिमिटेड बनाता हूँ, लेकिन उसके साथ क्या बढ़ जाता है? कंप्लायंस बढ़ जाती है। तो कंप्लायंस बढ़ गई तो किसकी जरूरत पड़ेगी? मित्र की जरूरत पड़ेगी हर सेक्टर में, इसलिए आपको देने हैं वो। ट्रेन तो आप ही करने वाले हो, करवा लेना जैसे करना है। If you look at the electrification of village and providing of drinking potable water to the villages, I have given a figure of that till 2014 only 30 million houses were provided drinking potable water, tap water. In last 6 years we have provided tap water, potable water, drinking water to 130 million households. So our target is to in next 4 years provide drinking water to every household, that is one. We have provided electricity almost to every house in the country, one. When I say every house means that has reached the villages also. Now what happens, there are new houses being built. मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ नए घर मिले, तो जिनको हमने 2 साल पहले सबको बिजली दी होगी, आज आपका ज्वाइंट फैमिली है, आपको लगता है आवास योजना में गरीब को पक्का मकान मिल रहा है, अपने एक अलग राशन कार्ड बनाता है, अपने लिए एक अलग घर बनाता है, तो साथ ही साथ उसको भी बिजली का प्रावधान किया जा रहा है। मैं पहाड़ों से आता हूँ, हमारे गांव ऐसे नहीं होते जैसे आप इकट्ठे बैठे ऐसे, तो एक घर बना है थोड़ा खेत में जाके, दूसरा कोई 2-3 घर कहीं और बने, तो हैमलेट्स होती हैं, अलग अलग बस्तियां होती हैं, जहाँ पे कहीं पे 10 घर हैं, कहीं पे 15 घर हैं, कहीं पे 5 घर हैं। हिमाचल में हर घर को बिजली है, लेकिन बहुत सारे जंगल ऐसे होंगे, झारखंड में हो सकता है, उड़ीसा में कहीं पे हो,
जहाँ पे कहीं अभी भी रह गया हो, लेकिन उसको भी देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। उसको सोलर लाइट, ताकि उसके ऊपर रूफटॉप सोलर लगा देते हैं, उसको बिजली वहाँ पे मिलती, वैसा भी हम प्रावधान कर रहे हैं। पूछ लो, आप पूछ लो। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये आज की डिमांड और आने वाली डिमांड भी है। अगर आप इस बजट में देखेंगे तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम CCUS में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा मैंने पहले कहा पंप स्टोरेज हाइड्रो, PSP हाइड्रो की मैंने बात की। उसमें क्या है कि सोलर बिजली से या विंड से जो आप बिजली पैदा करते हो, अगर आप उसको स्टोरेज करना है तो आपको बैटरी चाहिए। बैटरी लेने के लिए आपको रॉ मटेरियल विदेश से लाना पड़ता है। इसमें नया तरीका निकाला गया कि बिजली जो आपने उत्पादन की, उससे आप पानी को पंप करके वापस डैम में फेंको और रात को उसको हाइड्रो के माध्यम से जनरेट करो। तो जब पीक आवर्स आपके होते हैं तो उस समय आपको बिजली मिलती है। इस्तेमाल आपने कैसे किया? जो बिजली आपने रिन्यूएबल एनर्जी से की, तो आप इसको क्लीन एनर्जी के रूप में PSP एक नई, ऐसे नई नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से फर्क पड़ रहा है। हाइड्रोजन के ऊपर हमने ट्रेन चला दी। तो हाइड्रोजन पे ट्रेन चली तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रदूषण कम होगा। हमारी निर्भरता फॉसिल फ्यूल्स पे, जब दुनिया भर से पेट्रोल डीजल का क्रूड ऑयल लाते हैं, बाकी तो उसको रिफाइन हम यहीं करते हैं, उस पे कम होगी। तो आप देखोगे इन्हीं 4-5 सालों में आपको इतने वर्टिकल्स दिखेंगे क्लीन एनर्जी के। आज भी दिखते हैं, रूफटॉप सोलर भी दिखता है, विंड भी दिखता है, बायोमास भी दिखता है, ऐसे अनेकों सुविधाएं। गाड़ी चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल भी दिखती है, हाइब्रिड भी दिखती है। फिर आपको इथेनॉल मिक्स में भी ऑप्शंस आनी शुरू हो गए। ये तो अभी शुरुआत है, ये लगातार चुनौतियां हैं। आपने बहुत बड़ा सवाल किया, क्योंकि केवल पॉल्यूशन नहीं, ग्लोबल वार्मिंग एक इतनी बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ पे नवंबर दिसंबर तक खूब बर्फ पड़ जाती थी, इस बार जनवरी में जाके अंत में बर्फ पड़नी शुरू हुई। जो हम आर्कटिक की बात करते हैं, जहां बर्फ ही जमी रहती थी, तो पिघल गया साहब। दुनिया वहां पे नए ट्रांसपोर्ट के रूट देख रही है, वहां पे क्रिटिकल मिनरल ढूंढने जा रही है। ग्रीनलैंड पे जंग छिड़ रही है। जहां दुनिया क्रिटिकल मिनरल्स और नए ट्रांसपोर्टेशन रूट्स पे देख रही है कि यहाँ पे खर्चा बचेगा, मुनाफा ज़्यादा होगा, नई व्यवस्थाएं खड़ी होंगी, वहीं पे हमें इन बातों की चिंता करनी है कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं। लेकिन मेरा आप सबसे सवाल है, PM सूर्या घर योजना PM लाए, आप सब अपने घरों पे रूफटॉप सोलर लगा सकते थे, किस किसने लगाया? फायदा उठा लिया सबने। योजना बाद में आती, फायदा पहले उठा लेते हो। देश में 1 करोड़ घरों पे लगना था, अभी तक 21 लाख पे लगा है। उस हिसाब से आपकी यहाँ पे एवरेज बहुत अच्छी है। बड़ी बधाई हो भाई आप सबको, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। कुछ और? इकोनॉमी रैपिडली एक्सपांड हो रही है, तो अभी के लिए तो अच्छा है, पर आने वाले 10-15 साल के बाद, क्योंकि ये जो लोग हैं वो लोग एक ही काम करते हैं, उनकी स्किल ना इंक्रीज हो सकती है, तो उसके लिए सरकार का क्या प्रोग्राम?
पहला तो हमने गिग वर्कर्स के लिए जो एक चैलेंज था कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करो, टेंशन में जीवन जीना, एक्सीडेंट होने, कई हेल्थ इश्यूज आते थे। मैं मोदी सरकार का, मनसुख भाई का आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने समय रहते निर्णय लिए और गिग वर्कर्स के हित में वो निर्णय लिया। दूसरा, लेबर रिफॉर्म्स हम लोग इस देश में लेकर आए, जो इतने सारे लेबर लॉज थे हमने उसको 4 लेबर कोड में कर दिया। और यही नहीं, उनके भविष्य के लिए उनकी पेंशन बेहतर हो उसके लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया। हो सकता है आज कंपनीज को थोड़ा मुनाफा कम हुआ हो प्रावधान करने में, लेकिन मजदूरों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ये मोदी सरकार के नए लेबर कोड्स के कारण हुआ है। आपने एक बहुत बड़ी चिंता जो हमारे युवा साथी ने जताई है वो ये है कि गिग वर्कर्स का क्या होगा। कोविड के टाइम पे आप देखिए, दुनिया भर के लोग जिनको अपना स्किल पे बहुत लगता था कि हमने ये किया है, दे हैव टू गो थ्रू रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, एंड विद द न्यू टेक्नोलॉजी दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फॉर द कमिंग डेकेड्स। केवल गिग वर्कर्स के लिए नहीं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज और बाकी सब बैठे हैं, और इंडस्ट्री वाले भी बैठे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स इतने मिलने शुरू हो जाएंगे जहां एआई का उपयोग आप करोगे भी, पर आपका भी विकल्प वहां पे उपलब्ध होगा। तो गिग वर्कर्स के लिए भी ऐसा नहीं कि यहीं पे दुनिया समाप्त होने वाली है, उनके लिए भी इसके साथ साथ बहुत सारी आगे ऑप्शंस आएंगी। हर टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन के साथ साथ नई मार्केट भी इवॉल्व होती है। नई, तो हमारा जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है उसके माध्यम से, और आप देखो हम हर बजट में नई नई टेक्नोलॉजी, आज एआई मॉड्यूल्स को यूज़ करने का मोदी सरकार ने प्रावधान किया ना 25 करोड़ लोगों के लिए। इससे पहले डिजिटल लिटरेसी पे था। ऐसे ही इन जो गिग वर्कर्स है इनके लिए कभी ना कभी स्किल वर्क के लिए ऑप्शंस उपलब्ध आज भी हैं। वो किस क्षेत्र में स्किल लेना चाहते हैं वो आज भी ऑप्शन है उनके लिए, कोई रोक नहीं है। तो डिपेंड्स, ये सारे लगातार यहाँ काम नहीं करेंगे, ये मूव आउट होते जाएंगे, नई फौज आती जाएगी यहाँ पे करते करते। प्रेस के लोग 12:15 बजे से वेट कर रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। धन्यवाद सबका बहुत बहुत।